Good morning, students. Welcome you all in online English class. Today we are going to start our poem 5. The name of the poem is The Ball. It is written by John Berryman. First of all, I'm going to tell you about the poet. John Berryman was basically known for his poem The Dream Song, which is a sequence of 385 poems. He also got prize for the sequence known as Dream Song. John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for the Dream Song, which was published in 1969, which was a sequence of 385 poems. He won the Pulitzer Prize for the Dream Song. He also won a National Book Award. This was about the poet. Now I am giving you the introduction of the poem. The poet John Berryman, through his poem The Ball, has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand against the miseries and sorrow of life. Before moving towards the summary, first of all, I am going to give you an overview of the poem. Through this poem, the poet has given us the overview of the life, the overview of the sorrows or mysteries which we face in our life. जो भी हम दुख दर्द या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हमारे हम जिनसे जुड़े होते हैं या लोग जिनसे जुड़े होते हैं उसके बारे में ओवरव्यू दिया है पोइट ने इस पोएम के थ्रू. He has used a child and a ball to as an example to show these kind of connection between the materialistic things and the point. I'm going to start the summary. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. In the early life or in the young age, we have lost many things. हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं. रादर वी लॉस पीपल ऑल्सो. लोग जो होते हैं हम उनको भी खो देते हैं. बट हाउ टू ओवरकम दीज सोरोज, इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, हम या फिर हमें कैसे पता लगता है कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, कौन सा टाइम कितना टाइम पीरियड लगता है हमें. एक ना एक दिन या कुछ टाइम पीरियड हमारे पास ऐसा होता है जब हम ये सिचुएशन फेस करते हैं. एवरीवन फेस इट, सब इसे फेस करते ही करते हैं. ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय एंड हिज बॉल. The poet is standing somewhere there near the boy only. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. जो बॉय है, जो छोटा बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा है और उसके हाथ से फिसल कर स्किप होकर वो वहाँ पर पास में वाटर बॉडी जो पानी है वहाँ पर उसमें चली जाती है. The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. Now, what the poet is saying, that when he saw that young boy and his ball going away from him, that sight made him to think about it. ये जब साइट होती है, जब ये स्नैरियो होता है, सीन होता है, ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो जो बॉय का रिएक्शन होता है व्हेन ही वाज सीइंग हिज बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम. उसकी फेवरेट बॉल होती है और वो उससे दूर जा जा रही होती है. वी ऑल्सो लूज मैनी थिंग्स विच आर फेवरेट टू अस, जो हमारे लिए बहुत फेवरेट होती है. रादर वी लूज पीपल ऑल्सो, लोगों को भी हम खो देते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं. तो ये जो पोएट है उसको सोचने पर मजबूर कर देता है उस बॉय का रिएक्शन देखकर. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. अब यहाँ पर उसने बॉय को के रिएक्शन को बताया है कि जो बॉय है ही वॉज लुकिंग हेल्पलेसली, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है उस बॉल को. ही इज़ रिजिड, वो सहम गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फेवरेट बॉल को अपने से दूर जाते हुए देखते हुए. इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन, पानी में देख रहा है, वो वहाँ पर स्टिल खड़ा है, कुछ हरकत नहीं वो कर पा रहा है. ही वॉज जस्ट
वॉन्ट टू क्राई, वो सिर्फ रोना चाह रहा है या फिर हेल्पलेस है कि कोई उसको उसकी बॉल लाकर दे दे। ही वॉज सैड एंड वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, बहुत ज़्यादा उदास था और फियर, डर के मारे कांप रहा था, ट्रेम्बल कांपना। He got so immersed into his sorrow that he kept standing near the harbor from a very long time. अब वो इतना ज़्यादा उस दुख में डूब जाता है कि वो हार्बर, हार्बर क्या होते हैं, जहाँ पर शिप जो है वो खड़े होते हैं, बेसिकली वो चीज़ होती है ये, नियर द हार्बर, कि वो इतना ज़्यादा डूब जाता है अपने दुख में कि वो उस हार्बर के पास, उस वाटर बॉडी के पास जहाँ पर उसकी बॉल गई है, वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। एंड केप्ट ऑन लुकिंग फॉर हिज बॉल, और अपनी बॉल को देखता रहता है। द पोइट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम, पोइट क्या कहता है कि वो उस बॉय को कंसोल कर सकता है। दैट ही मे गेट न्यू बॉल्स, क्या कहकर कि उसे और भी बहुत सारी नई बॉल्स मिल सकती हैं, जो पोइट है वो खुद उसे न्यू बॉल लाकर दे सकता है। बट और ही कुड ऑल्सो गिव हिम सम मनी टू बाय अनदर बॉल, वो उसे मनी भी दे सकता है दूसरी बॉल को लाने के लिए, दूसरी बॉल परचेज करने के लिए। बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो खुद को रोक देता है। एज ही थिंक्स दैट द मनी मे ब्रिंग अ न्यू बॉल, क्योंकि वो क्या सोचता है कि जो मनी है वो नई बॉल लेकर आ सकती है, but will not bring the memories and feeling attached to the lost ball, लेकिन जो मेमोरीज और जो फीलिंग्स हैं जो उस लॉस्ट बॉल के साथ चली गई हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। यहाँ पर क्यों जो पॉइंट है उसने ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी और फीलिंग, जस्ट बिकॉज हो सकता है बहुत छोटा हो, वो उस बॉल के साथ बहुत खेलता हो, और साथ ही साथ वो उस बॉल के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उस बॉल के साथ उसने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हो। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारी बॉल्स हैं, हमारे पास बहुत सारी बॉल वो परचेज कर सकता है, लेकिन उस चीज़ के साथ जो जुड़ी हुई हमारी फीलिंग्स हैं, उस बॉय की फीलिंग्स है, मेमोरीज है, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibility. Now the poet has further elaborated. क्या कहा है पोएट ने कि अब टाइम आ चुका है उस बॉय के लिए, किस चीज़ का, टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का। यहाँ से ये फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है बॉय के साथ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना स्टार्ट कर देगा कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकेगा, वो कैसे इस बॉल को भूलकर या इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भूलकर एक नया चैप्टर, एक नई जो टाइम है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा पर उसे सीखना होगा, क्योंकि एट लास्ट हमारे पास बहुत से ऐसे इंसिडेंट आते हैं जब हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, हमें अपने सोरोस को पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन करना पड़ता है। Here, the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of the life. अब यहाँ पर क्या कहा है पोएट ने कि जो बॉय है अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफेस्ट लेसन यहाँ पर सीखेगा। द लेसन ऑफ accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved one and our loved things. क्या सीखेगा, कौन सा टफेस्ट लेसन है जो बॉय यहाँ पर सीखेगा? द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या हार्श रियलिटी है हमारी लाइफ की? दैट वन डे, एक दिन, वी विल लॉस आर लव्ड वंस एंड आर लव्ड थिंग्स, कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है हमारी लाइफ में जब हम अपने लव्ड वंस को, और जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, वो कुछ भी हो सकती हैं, हम उनको एक दिन खो देंगे। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम इन इन चीज़ों को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बट टाइम टीचस अस एवरीथिंग, टाइम हमें सब कुछ सिखा देता है। वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे इन सॉरोस को पीछे छोड़ना है, कैसे इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, कैसे मूव ऑन करना है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट बॉय वॉज लर्निंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फर्स्ट डे है उसकी लाइफ का, फर्स्ट टाइम वो ये चीज़ सीखेगा। सो थ्रू दिस पोएम द पोएट हैज़ गिवन अस अ मैसेज
कि हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है और हम उस टाइम को छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।